Yes. Are you able to see the screen, Shireen? Yes, ma'am. Okay. Now you can start, Shireen. Okay. Hi everyone. As you all know, my name is Shreen Khan from 2020 batch pass out, and basically I am from Sihor, MP, and recently I'm working in SL Technology as cloud engineer and VMware analyst in Noida. Let me show my journey. Ma'am, please next slide. Yeah. So there is some glimpse of my college journey. I started my college from 2016. Then from 2019, I started my professional career because I'm passed out in 2020, but I got placed in 2019 in Lofton Private Software Limited as a data analyst. So I joined company in 7th semester. And from college, I was a SecHat coordinator and I was a CRS activity club member as well. When I'm in college, I'm trying to participate in different competition with study. And except from study, and I've also participated in Rankathon activity. From our time, there is one lab, Rankathon, which is affiliated from IIT Kharagpur. So I was their coordinator, and also I have done my computer vision training from there. And there's some pictures of Sagar Utsav, Teachers' Day celebration, and other activities. Can you please share next screen? Okay, so that is my achievement from college. I was topper, but from parallelly, मैं हमेशा participate करती थी every competitions में, like Smart India Hackathon, Game of Code, and in second semester, in Game of Code, I was selected in top 20 of national level competition. And there is also one more competition, IO. It is Indian Engineering Olympiad, where I got position in top 50. Except that in third year, I was participating in IEPC competition in Pune, where I present our project with my groups. Then also in third year, I participated in Bhopal Vigyan Mela, and we got merit positions. In fourth year starting, I was participated in Chhatra Vishkarma Award, which is conducted by ISCTC every year, and I was selected for final year presentation. And there is one more certification which I got from college as a SAC activity member. So that's all my college achievement with my group or classmates. So let's start about placement. Can you share next screen? Okay, so our today topic is placement guidance. So before placement, the first thing is career choice. जब भी हम लोग कॉलेज में एंटर होता है या हम लोग का प्लेसमेंट होने वाला होता है, सबसे पहले होती है हम लोग करियर चूज करना. और फॉर करियर आप लोगों को सबसे मेन पॉइंट है आपका इंटरेस्ट जानना कि आप लोगों को किस चीज में इंटरेस्ट है. फर्स्ट यू नीड टू फाइंड योर इंटरेस्ट, देन यू नीड टू सेट गोल फॉर दैट. It's not like that you are CS student, you are only interested in technology. Some students are very good in designing part. There are some are very good in analysis part. So according to this, you need to choose your career. And then preparation for that. Okay, so we'll discuss about how you got crack any campus or how you should prepare for this campus. I'll share next. Please share next screen. Okay, there is some point where you need to think about when you are trying to sit any campus placement. So
फर्स्ट थिंग इज फॉर कैंपस प्लेसमेंट इज रिसर्च। जब भी आप लोग 4th ईयर में आ जाते हो और कैंपस आने लगता है तो पहली चीज है रिसर्च अबाउट कंपनीज। जिस भी कंपनी को आपको बैठना है, सभी कंपनी अलग अलग डोमेन पे काम करती है, अलग अलग टेक्नोलॉजीज पे काम करती है, सभी कंपनी की अलग अलग सर्विसेज होती है। तो पहली चीज है कंपनी के बारे में रिसर्च करना। आप लोगों को किस कंपनी में ट्राई करना है, ये इजी हो जाता है आपके लिए कंपनी चॉइस करना। ऐसा नहीं है कि कंपनी में सिलेक्शन बहुत बड़ी चीज है, उसके लिए कुछ चीजें होती है जो आपको प्रिपेयर करना चाहिए। तो फर्स्ट इज रिसर्च, देन यू नीड टू थिंक अबाउट सिलेक्शन प्रोसेस। सभी कंपनी का सिलेक्शन प्रोसेस जो भी होता है वो डिफरेंट होता है। कॉमन चीज होती है जो हर कंपनी मोस्टली सिलेक्शन प्रोसेस में रखती है, द रिटर्न टेस्ट, टेक्निकल एंड एचआर राउंड। फॉर रिटर्न टेस्ट आप लोगों को स्टार्टिंग से ही जो भी कॉलेज में पढ़ाया जाता है, टीएनपीसीएल आप लोगों के लिए क्लास कंडक्ट करती है, एप्टीट्यूड रीजनिंग क्लासेस, आप लोगों को उस पर मोस्टली ध्यान देना चाहिए। देन सेकंड योर बेसिक सब्जेक्ट, जो भी बेसिक सब्जेक्ट है आपका वो स्ट्रांग होना चाहिए टेक्निकल टेस्ट के लिए, क्योंकि जब भी टेक्निकल टेस्ट होता है उसमें एप्टीट्यूड रीजनिंग के साथ साथ हम लोगों का सी प्रोग्रामिंग का बेसिस, डाटा स्ट्रक्चर का बेसिस, ये मोस्टली पूछा जाता है सभी कंपनीज में। आफ्टर दैट इन टेक्निकल राउंड, जो भी टेक्नोलॉजी आप चूज करते हैं फॉर योर करियर प्लान, उसके बारे में ज्यादा पूछा जाता है। आफ्टर दैट योर प्रोजेक्ट, वॉट एवर प्रोजेक्ट यू आर डूइंग, और जो भी प्रोजेक्ट आप लोग बनाते हैं 3rd ईयर एंड 4th ईयर में, उसके बारे में आपसे मोस्टली पूछा जाएगा टेक्निकल राउंड में। देन एचआर राउंड इज, फर्स्ट क्वेश्चन फॉर एचआर राउंड इज टेल मी अबाउट योरसेल्फ। एवरी टाइम देयर द फर्स्ट क्वेश्चन इज टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि यही स्टार्टिंग क्वेश्चन होता है जो आपका इम्प्रेशन रखता है एचआर के सामने। देन थर्ड एक्सपेक्ट इज टेक्निकल नॉलेज। अब जब भी किसी कंपनी की प्रोफाइल के लिए अप्लाई करते हो तो कंपनी बेसिकली दो चीजों पे फोकस करती है, एक टेक्निकल प्रोफाइल एंड नॉन टेक्निकल प्रोफाइल। इन टेक्निकल प्रोफाइल टेक्नोलॉजी नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू वांट टेक्निकल प्रोफाइल तो आपको किसी भी एक टेक्नोलॉजी, स्टार्टिंग से एक टेक्नोलॉजी लेके उसी में मास्टर्स करना चाहिए फ्रॉम स्टार्ट टू एंड कॉलेज। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टेक्निकल प्रोफाइल। एंड नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन। सम कंपनी कम्युनिकेशंस पे बहुत ज़्यादा फोकस करती है फॉर नॉन टेक्निकल प्रोफाइल। लाइक कम्युनिकेशन इज नॉट कि लाइक आपको इंग्लिश आती है या नहीं आती है, आप लोग बोलोगे कि नहीं हम लोगों की इंग्लिश वीक है, ऐसा दैट इज नॉट मेन थिंग। इंग्लिश आना ना आना एक अलग बात है, बट कम्युनिकेशन, अगर आपको इंग्लिश अच्छे से भी आती है तब भी अगर आप को कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं आती है तो आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे उनको, उस तरह से नहीं बता पाओगे। तो you have to focus on your communication skill, and English is like you need to prepare, like आप लोग आपस में ग्रुप स्टडी करते हो तब आप इंग्लिश में थोड़ा ट्राई करो इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। अब मूवीज सभी लोग देखते हैं तो ट्राई टू कैप्शन मूवीज, इसमें इंग्लिश में कैप्शंस होता है, तो इट विल हेल्प टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। देन लास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्फिडेंस। when you're going for interview, you have to be confident about your knowledge. It's not like that कि you always rejected or you always selected. It's not like that. अगर आप reject भी होते हो तो आपको regret नहीं करना है. You always try to learn about your experience. If you're rejected तो आप try करो कि आप उस कैंपस में या उस इंटरव्यू में आपसे क्या मिस्टेक हुई है, एंड वर्क करके आप आगे जाके उसी को इम्प्रूव करने का ट्राई करो। बट हमेशा आप जब भी इंटरव्यूज में होते हो तो आप हमेशा कॉन्फिडेंट के साथ बैठो, जो भी नॉलेज आपके पास है जैसा भी है उसके साथ कॉन्फिडेंटली बैठोगे तो सामने वाला भी आपसे इम्प्रेस होगा। अगर आप ऐसे ही जाते हो बिना कॉन्फिडेंस के, नर्वस सभी होता है बट वहां पे भी आप लोगों पे कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा इफ यू डोंट हैव कॉन्फिडेंस। तो मेन चीज है कैंपस में आपका कॉन्फिडेंस। तो दीज आर 5 थिंग। जब भी आप किसी कैंपस में बैठते हो तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कंपनी के बारे में, अपने टेक्निकल नॉलेज पे काम करना है, कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना है विद कॉन्फिडेंस। ऑल्सो जब
हम लोग कॉलेज में होते हैं तो हम लोग स्टडी पे फोकस करते हैं। आई एम ऑल्सो टॉपर, आई वॉज टॉपर एट कॉलेज, बट साथ में टॉपर्स के साथ में मैं हमेशा पार्टिसिपेट करती थी सभी कॉम्पिटिशन्स में। मैं हर कॉम्पिटिशन में पार्ट करती थी, जिससे आप लोगों को हेल्प होगी फ्यूचर में मैनेज करने में। जब हम लोग कॉर्पोरेट लाइफ में काम करते हैं तो वहाँ पे भी ऐसी बहुत सिचुएशंस आती हैं जहाँ पे हम लोगों को डेली वर्क करियर में मैनेज करना पड़ता है। और बहुत सारी मल्टीपल एक्टिविटी होती है जो हमें साथ में मैनेज करने में हेल्प करती है। दैट कैंपस प्लेसमेंट से पहले जब आप लोग थर्ड ईयर में होगे तो ट्राइंग टू गेट इंटर्नशिप। लाइक आप इंटर्नशिप के लिए ट्राई करो, इंटर्नशिप ढूंढो। देयर सम साइट, लिंक्डइन, इंटर्नशाला, जहाँ पे आप लोगों को बहुत सारी इंटर्नशिप प्रोवाइड होती है। आप ट्राई करो कि आप कैंपस सिलेक्शन से पहले इंटर्नशिप ढूंढो, इंटर्नशिप पे वर्क करने का ट्राई करो। इंटर्नशिप से आपको एक बेसिक नॉलेज मिल जाता है कि जब आप लोग जॉब करोगे, कंपनी ज्वाइन करोगे, तो किस तरह से आप लोगों को वहाँ का एनवायरनमेंट मिलेगा। एक कॉर्पोरेट लाइफ का आपको टाइम मिलता है देखने के लिए, चीजें सीखने को चीजें मिलती हैं। तो फोकस करो आपके इंटर्नशिप पे। और फॉर इंटरव्यू पर्पस और टेक्निकल नॉलेज में यही बोलूंगी कि स्टार्टिंग से एक टेक्नोलॉजी आप लेके चलो, वही टेक्नोलॉजी पे अच्छे से मास्टरी करो ताकि आगे जाके आपको वो इशू ना हो। एक टेक्नोलॉजी, डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी लेने की जरूरत नहीं है कि मुझे ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए। एक टेक्नोलॉजी पे फोकस करोगे, उस पर मास्टरी करोगे, दैट विल रियली हेल्प फॉर योर फ्यूचर। एंड अगर हम लोग करंट आईटी इंडस्ट्री और करंट टाइम की बात करते हैं कि आप लोगों को जॉब किस डोमेन में मिलेगा, तो अभी आईटी कंपनी जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड एवरीथिंग इज लाइक वर्चुअलाइज्ड, सभी जो वर्चुअलाइज्ड हो गई है। तो करंटली आईटी कंपनी क्लाउड के ऊपर बहुत फोकस कर रही है, कंपनी बूम क्लाउड में कर रही है। बेसिकली जो भी अभी हायरिंग्स हो रही है एज अ फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस, मोस्टली क्लाउड के लिए हो रही है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अपना डोमेन कुछ ऐसे ही चूज करके चलो कि आगे जाके आपको उसमें प्रोग्रेस मिले। अभी क्लाउड बहुत बूम टॉपिक है आईटी एम्प्लॉय के लिए, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ क्लाउड टेक्नोलॉजी लाइक एज़्योर, एडब्ल्यूएस, जीसीपी। इसका फ्री स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल होता है। तो आप लोग थोड़ा सर्च करोगे, क्लाउड के बारे में स्टडी करोगे, दैट विल रियली हेल्पफुल टू योर फ्यूचर। So that's all from my side. If you guys have any question, any doubt, any query, so you can ask me. Yes. Shireen has come to guide you for the placement and please ask questions. अभी आप शिरीन, आपने कौन सा टेक्नोलॉजी ऑप्ट किया था और कैसे काम कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो, थोड़ा वो भी बता दो 5 मिनट। Yes, मैम मैंने स्टार्ट किया था एज अ डेटा एनालिस्ट। मैंने फर्स्ट कंपनी में एज अ डेटा एनालिस्ट काम किया था। देन आई वाज वर्किंग इन टेस्टिंग प्रोजेक्ट आल्सो। आफ्टर दैट व्हेन आई ग्रेजुएट फ्रॉम कॉलेज, मैंने एसएल टेक्नोलॉजी चूज की, वेयर आई स्विच टू क्लाउड टेक्नोलॉजी, जहाँ पे मैं एज़्योर क्लाउड पे काम कर रही हूँ। विद एज़्योर क्लाउड मैं एज अ VMware एनालिस्ट पे काम कर रही हूँ, जहाँ पे हम लोग वर्चुअलाइजेशन पे वर्क करते हैं। Okay. Now, anyone have any question, any query? Free feel to ask. Yes. Yes, ma'am. राहुल। हेलो। हाँ, यस राहुल, वीडियो ऑन कर लो अपना प्लीज, वीडियो ऑन करिए। यस राहुल, यस आस्क, क्वेश्चन पूछिए। ये पूछ रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट करना जरूरी रहता है क्या एज आईटी कंपनी में, या जो बाहर से इंटर्नशाला और भी सब चीजों में बताया तो और स्कूल चल रहे हैं उसको ज्वाइन करना सही रहेगा क्या? जैसे नहीं, ऐसा नहीं है। सभी कंपनी के अपने डिफरेंट डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट होते ही हैं। लाइक आप जब भी कंपनी चॉइस करोगे तो एज अ फ्रेशर्स के लिए वो होता है। और ऐसा नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट बहुत लंबे टाइम के लिए होता है। बहुत सारी कंपनी का 6 मंथ्स का होता है, बहुत सारी कंपनी का 1 साल का होता है। बट हाँ, ऐसा नहीं है, सभी कंपनी में कुछ ना कुछ बॉन्ड या कॉन्ट्रैक्ट होता ही है एज अ फ्रेशर। और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लाइक फ्रॉम स्टार्टिंग आप लोगों का ट्रेनिंग होता है, आप सीखते हो, तो 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट
फाइन होता है, उसमें कोई इशू नहीं है कॉन्टेक्ट से। एक मिनट देखिए, करा नहीं करा मैंने 3 सर्टिफिकेट। ओके मैम, थैंक यू। यस, एनीवन एल्स? कुछ और पूछना है? मैडम ने बता दिया है कि नाउ इस समय क्लाउड बहुत ज्यादा मार्केट में है। आफ्टर दैट इन लोगों को माइनर मेजर प्रोजेक्ट का थोड़ा सीरियसनेस बताओ श्रीन। ये लोग बिल्कुल सीरियस नहीं है माइनर प्रोजेक्ट एंड मेजर प्रोजेक्ट पे। तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ माइनर एंड मेजर प्रोजेक्ट इन बीटेक सेशन? ओके, तो मैंने सिलेक्शन प्रोसेस में भी बोला था मैम कि टेक्निकल इंटरव्यू जब भी होता है तो टेक्निकल इंटरव्यू में टेक्नोलॉजी पूछते हैं, सेकंड प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे कैंपस प्लेसमेंट के लिए। ये जो भी माइनर और मेजर प्रोजेक्ट तुम बनाते हो, तुम्हारा होल टेक्निकल इंटरव्यू बेस्ड ऑन योर प्रोजेक्ट, जो भी आप लोग काम करोगे, दे आर मैनी क्वेश्चन सिर्फ आपके प्रोजेक्ट से ही आते हैं। और उस प्रोजेक्ट से फायदा भी होता है, अगर आप मेजर प्रोजेक्ट अच्छा बना रहे हो तो बहुत सारे कंपटीशन में भी आप उसी से पार्टिसिपेट कर सकते हो। बट जब भी आप किसी भी टेक्निकल इंटरव्यू में बैठोगे, किसी भी कंपनी के इंटरव्यूज में बैठोगे, वो आपसे प्रोजेक्ट के बारे में ही पूछते हैं, माइनर मेजर प्रोजेक्ट की ही क्वेश्चंस करते हैं। तो आप लोग अगर सीरियस नहीं हो तो प्लीज प्रोजेक्ट को सीरियसली लो, उस पर काम करो, क्योंकि जितना भी एक्सपीरियंस आपका प्रोजेक्ट का है वही सारी चीजें वहां पे पूछी जाती है टेक्निकल इंटरव्यू में। यस, एनीवन एल्स? मैम प्रोजेक्ट तो बनाने चाहिए, लेकिन मतलब किस चीज के ऊपर प्रोजेक्ट बनाने चाहिए? मेजर प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का ना रियल टाइम आप सिनेरियो देखो, रियल टाइम प्रॉब्लम्स देखो। अगर मैजिक प्रोजेक्ट के लिए आप ट्राई कर रहे हो, आप पहली चीज तो रिसर्च करो कि आईटी कंपनी अभी किस चीज पे काम कर रही है। जैसे मैंने बोला क्लाउड पे अभी बहुत ज्यादा काम चल रहा है, उसके लिए रियल टाइम प्रॉब्लम्स होती है जो भी, लाइक इन IICTC हम लोग को टॉपिक दिया हुआ था कि हमें विलेजेस की इनकम को इंक्रीज करना है। दैट ऑल्सो रियल टाइम सिनेरियो, जिसपे हम लोगों ने प्रोजेक्ट का आइडिया प्रपोज किया एंड हम लोग सिलेक्टेड हुए थे उसके फाइनल प्रेजेंटेशन के लिए। ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट डोमेन है। पहली चीज तो आप कौन सी टेक्नोलॉजी पे काम करना चाहते हो वो चूज करो टेक्नोलॉजी, देन उसके अकॉर्डिंग उस टेक्नोलॉजी से क्या प्रोजेक्ट बिल्ड कर सकते हो। एक सिनेरियो आप ये भी ले सकते हो, अदरवाइज आप करंट जो भी सिचुएशन चल रही है या रियल टाइम प्रॉब्लम उठा के उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ओके तो मैम। यस, मैम जो कोडिंग का लेवल होता है इंटरव्यू में, वो मतलब हाई लेवल होता है या मीडियम लेवल में भी हो जाता है सिलेक्शन? नहीं, कोडिंग का इंटरव्यू हाई लेवल नहीं होता है। आप लोग सब बेसिक लेवल पे कोडिंग्स होती है, बट डिपेंड करता है कंपनीज के। लाइक TCS जो है वो कोड वीटा अरेंज करती है, कोड वीटा हाई लेवल पे होता है। अदर कंपनी कोडिंग बेसिक ही लेवल रखती है और मीडियम लेवल पे ही रखती है। ऐसा भी नहीं कि कंपनी जाने से पहले आपको सब सीखना पड़ता है, जब भी आप कंपनी में जाओगे तो वहां भी आपको ट्रेनिंग मिलती है। बट हाँ, अगर आपको टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है तो आपका कोडिंग बेस्ट होना चाहिए। आप स्टार्टिंग फर्स्ट ईयर से ही कोडिंग पे वर्क करना शुरू कर दो, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन कोडिंग और टेक्निकल जॉब प्रोफाइल। यस ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। मैम ये पूछना था कि आपने आपका फर्स्ट इंटरव्यू कैसे टैकल किया था? मतलब आपको क्या डिफिकल्टीज आई थी और हमारे लिए क्या स्ट्रेंथनिंग पॉइंट्स रहेंगे जो हम ध्यान रखें अपने फर्स्ट इंटरव्यू ओके, सो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू, मैं जब थर्ड ईयर में थी तभी हम लोग का फर्स्ट इंटरव्यू कंडक्ट हो गया था। लाइक सडनली हम लोग एक कंपटीशन से रिटर्न आए थे और हम लोगों के लिए कंपनी आ गई थी, तो मेरा एग्जाम वहाँ पे क्लियर हो गया था। एंड जब मैं इंटरव्यू के लिए गई थी तो फर्स्ट थिंग, सिमिलर जो मैम ने बोला प्रोजेक्ट, सबसे पहला क्वेश्चन प्रोजेक्ट से ही रिलेटेड था। अगर क्वेश्चन प्रोजेक्ट से ही रिलेटेड चीजें पूछी जाती हैं तो आप लोग सबसे मेनली अपने प्रोजेक्ट से लेकर हर एक डिटेल आपके पास होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए आप लोग क्या चैलेंजेस फेस करते हो प्रोजेक्ट बनाने में, क्या आप लोगों का पार्टिसिपेशन रहता है उसमें इंडिविजुअली, वो सारी चीजें आपको ध्यान में रखना होगा। और एक चीज इंटरव्यू में टेल मी अबाउट योर सेल्फ जो क्वेश्चन होता है, आपको उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करना है। ऐसा नहीं है कि जस्ट आपने गूगल इट किया और या जस्ट रट्टू तोता की तरह आप लोग पढ़ते जा रहे हो, ऐसा नहीं। बी नेचुरल और टेल मी अबाउट योर सेल्फ अच्छे से प्रिपेयर करो। उसमें अपना टेक्निकल नॉलेज लिखो, फैमिली बैकग्राउंड लिखो,
अपना अचीवमेंट्स लिखो जो भी कॉलेज से आपको मिला है, एंड एक्स्ट्रा करिकुलम ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी आप पार्टिसिपेट करते हो, जितना पार्टिसिपेट करोगे, जितने कंपटीशन में जाओगे, आपको एक्सपीरियंस मिलता है। हमेशा ऐसे नहीं होता कि यू हैव टू विन समवेयर। आपको जो भी एक्सपीरियंस होता है, जर्नी होती है, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू मैम, थैंक यू। हाँ, वेलकम। एनी अदर क्वेश्चन? हेलो मैम। हेलो यस, हेलो। मैम मुझे पूछना था कि रिज्यूम का क्या रोल रहता है? सॉरी कोमल, आपकी वॉइस। मैम रिज्यूम मतलब रिज्यूम का क्या रोल रहता है? ओके, रिज्यूम का क्या रोल होता है? समटाइम आपका सिलेक्शन रिज्यूम बेस्ड भी होता है। फर्स्ट इज रिज्यूम सिलेक्शन। जब कभी कभी क्या होता है कि कॉलेज के बाहर भी हम लोग अप्लाई करते हैं, तो हम अप्लाई रिज्यूम के बेस्ड पे ही करते हैं। तो वो लोग जब हमसे 1-to-1 इंटर नहीं करते हैं, तो टोटल हमारा रोल, एक्सपीरियंस, अचीवमेंट जो रहती है, वो रिज्यूम से ही देखते हैं। एंड दैट वाज फर्स्ट इम्प्रेशन। तो आपका रिज्यूम एकदम क्लीन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने रिज्यूम जस्ट दिखाने के लिए बनाया है। जो भी आप रिज्यूम में मेंशन करते हो, आपके एचआर में, टेक्निकल में, वहां से भी क्वेश्चंस आते हैं, वही टेक्नोलॉजी पूछी जाती है आपसे। रिज्यूम में आप जो भी प्रोजेक्ट मेंशन करोगे, वो आपसे पूछा जाएगा। हेलो नंद कुमार, योर वॉइस। Hi. हाय। Basically, we are currently working for Diamond Seller of Flipkart, but we want to change the field for cloud computing for next area. So I switched the job, and we have technical field, sir, and graduate from Government Engineering College, Jabalpur, and I want to join for SCL. ओके, यू वांट टू जॉइन एचसीएल? Yeah. But we have not experience like cloud computing at ABS, but we have work on ABS platform. ओके। Okay. Hi. ठीक है, तो फर्स्टली क्लाउड इज न्यू फॉर यू, Yes. so there's no like problem if you start cloud. That is not like ki you have to cloud in development part. Cloud also, there are different parts. The infra part also available in cloud, and you can start from scratch. There are many certification in cloud, like Azure fundamental certification. In that certification, Okay. only basic thing available. तो अगर आप स्विच भी करोगे तो ऐसा कोई इश्यू नहीं होता है क्लाउड में। Okay. Whenever you join company, they will train you and they will provide you KT sessions. Okay. Okay. But we are currently doing the e-commerce platform like listing data and managing a discount panel. Okay, so it's like some big data. No, big data, not MIS. Like we have received the warehousing, listing the data and manage. Management part. Yeah. No problem. If you want to switch, you can. It not be so much difficult for you. But You need some time. planning for the new field, I want to for more certification like a clouds area studio. Yeah, but if you got job in Azure, तो जब आप जॉब करोगे, आप प्रैक्टिकल में ही जाओगे। जॉब में आपको प्रैक्टिकल वर्किंग ही मिलती है। उसके साथ साथ आप सर्टिफिकेशन करते हो, तो ये है कि आपके वैल्यू बढ़ती है जॉब प्रोफाइल में। लेकिन मैंने लास्ट 3 या 4 मंथ्स में 4 से 5 सर्टिफिकेशन की हैं एज्योर से रिलेटेड, जब से मैं एज्योर में काम कर रही हूँ। तो पहले जब मैंने भी ज्वाइन किया था एचसीएल, मैंने भी एज अ डेटा एनालिटिस्ट स्विच किया था क्लाउड इंजीनियर। तो आई एम आल्सो दैट पार्ट, बट व्हेन आई ज्वाइन एंड स्टार्ट स्क्रैच से किया, धीरे धीरे मैनेज हो जाता है, प्रॉब्लम नहीं होती है। Okay, but the year of gap, I have passed out of the 16 batch, and Okay. so I joining the for reason for how the more gap year educational and so on that. How many year experience you have in working? 3 year experience in the e-commerce because I joined Flipkart. Yeah.
हाँ, Okay. तो no problem. You passed out in 2016, but you have 3-year experience from 2016 to now, na? Yes, but my field is very different for this. Sorry. My field is totally different. Like cloud computing is the technical parts, and we are doing in e-commerce. Yeah, but if you are interested in cloud, you can switch. Okay. No, but you have to self study. सबको सेल्फ स्टडी बहुत करना पड़ेगा. लाइक फर्स्टली समटाइम क्या होता है कि लोग विंडो एडमिनिस्ट्रेटर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है. विंडो स्टार्ट करने के बाद में उसका जो बेसिक रहता है वो क्लाउड में बहुत हेल्प करता है, तब जाके फिर क्लाउड में स्विच करते हैं. और क्लाउड में भी बहुत सारी चीजें लाइक डेवऑप्स पार्ट आल्सो देयर. डेवऑप्स वाइड पार्ट है, तो क्लाउड में भी आने के बाद में हम डेवऑप्स के लिए भी स्विच करते हैं, तो उसके लिए भी हम लोग को बहुत सारा स्टडी करना पड़ता है. Okay. Okay. If you have certification, you have study material, you have knowledge, तो प्रॉब्लम नहीं होगी आपके स्विच करने में. You can switch with your experience. Okay. Okay. But okay. Thank you. Okay. Now next one. Anyone can have any query? Yes, ma'am. Yes, Disha. Hello, ma'am. Hello दिशा. मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर सपोज SCL मुझे ज्वाइन करनी है, बट SCL जिस टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है वो टेक्नोलॉजी मुझे नहीं आती है. लाइक मैं पाइथन पे काम कर रही हूँ और अगर वो क्लाउड पे काम कर रही है, तो फिर मैं ज्वाइन कैसे कर सकती हूँ? लाइक मुझे पहले पाइथन सीखनी होगी, उसके बाद ज्वाइन करना होगा, या नहीं पहले दिशा, ऐसा नहीं है कि कंपनी सिर्फ क्लाउड पे काम कर रही है. MNCs में सभी टाइप के प्रोजेक्ट रहते हैं, सभी टाइप की टेक्नोलॉजीज पे काम करते हैं. ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप SCL सिर्फ क्लाउड पे काम करती है. SCL के पास डेवलपमेंट पार्ट भी है, हार्डवेयर पार्ट भी है, ठीक है. और जब भी आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन करोगे ना, आप तो भी फ्रेशर हो, जब भी आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन करते हो तो कंपनी आपको ट्रेनिंग देती है. लेट सपोज एग्जांपल ऑफ SCL 3 मंथ्स का ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है फॉर फ्रेशर्स. आपको स्टार्टिंग टू एंड तक ट्रेनिंग देते हैं जिस भी प्रोजेक्ट में वो आपको डिप्लॉय करना चाहते हैं. ओके. हाँ, तो अगर आपको पाइथन आती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर आपको दूसरे प्रोजेक्ट में डाल रहे हैं तो उससे पहले वो आपको उसका ट्रेनिंग देंगे, कैटी सेशन देंगे, देन आपको वो प्रोजेक्ट में डिप्लॉय करेंगे. तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको पहले से सीखना है, बट हाँ आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए, बेसिक्स आपको आना चाहिए, ऐसा. ओके मैम, थैंक यू. मैम. आकाश. यस मैम, मैं ये पूछ रहा था मैम, अपने को कितनी मतलब कौन सी लैंग्वेज पे अच्छा कमांड करना चाहिए थोड़ा सा? ओके. कौन सी लैंग्वेज पे कमांड करना चाहिए, इसके लिए पहले तो आपको मैं सजेस्ट करूंगी कि आपको किस लैंग्वेज में इंटरेस्ट है, और वो देखो कि आपको इंटरेस्ट किस लैंग्वेज में है. यस मैम. अगर सिनेरियो देखा जाए तो पाइथन पे ज्यादातर पाइथन पे होता है, तो आप पाइथन पे काम करो बेसिकली. यस मैम. कितनी लैंग्वेज है मैम? यहाँ पे लैंग्वेज बहुत सारी है, बट जैसे C++ का आपको बेसिक्स आना चाहिए, क्योंकि आप इंटरव्यूज में बैठते हो तो मोस्टली क्वेश्चन से ही आते हैं. उसके Yes, साथ ma'am. में आपको And करंट C++? कॉन्सेप्ट है C++ में कॉन्सेप्ट मैम? आपकी वॉइस क्लियर नहीं है. मैम जो C++ के कॉन्सेप्ट रहते हैं वो ना मैम? हाँ, C++ के कॉन्सेप्ट और C, क्योंकि इंटर रिटर्न टेक्निकल इंटरव्यू सभी में वही चीजें आती हैं. उसके बाद में अगर आपको एक टेक्नोलॉजी और पकड़नी है, एक लैंग्वेज पे काम करना है, तो पाइथन इज गुड फॉर यू. आपको एप्लीकेशंस में जाना है, ऐप डेवलपमेंट में जाना है, तो जावा इज गुड फॉर यू. थैंक यू मैम. वेलकम. ओके. नाउ आई थिंक बहुत सारा गाइडेंस आप लोग को मिल गया है एंड बहुत ही फ्रूटफुल सेशन था शिवानी का. यस दिशा, you continue. First you unmute yourself. Thank you so much, ma'am, for the knowledgeable session. Now I would like to invite the ma'am to give vote of thanks to. Good afternoon, all of you. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. And first of all, thanks to Anjana ma'am and Nitya madam for arranging such a nice session of our dear alumni. है ना? और आप लोगों को कैसे लगा बेटा?
Previously, you were the students here, and now you are invited as an expert in this talk. How you are feeling? Ma'am, I'm feeling really great. And I'm also here also student. मैं अभी भी वहीं से एमटेक कर रही हूँ, तो मैं अभी भी पार्ट हूँ कॉलेज स्टूडेंट का, और साथ में मैं अपना करियर बिल्कुल। और आप? चलो, और आई होप ऑल द पार्टिसिपेंट एंजॉयड अ लॉट। और जो भी आपका करियर गाइडेंस से रिलेटेड क्या होता है, ये लोग ये सारी चीजें फेस कर चुके हैं, तो आई थिंक ये इसलिए इंटरैक्टिव सेशंस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हम लोग, ताकि आप लोग आपकी जो भी क्वेरीज है या जो भी डाउट है, प्रैक्टिकल जो थिंग्स है कि एक्चुअली कैसे होता है जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो वो सारी चीजें आप लोगों को पता रहे। ठीक है? So thank you all of you for attending this session, and thanks Beta for accepting the invitation, and you are here for this session. Thank you, ma'am. Ma'am, it's really great pleasure for me also. Okay, Shireen, thanks a lot to come, and unfortunately Shivani join nahi kar pai. It's okay. Now I am sharing a certificate which I will give you. I will send you on WhatsApp. Okay. Okay. Thank you. Thank you, Shireen. Thank you, ma'am. Invite करने के लिए. Okay. And यदि किसी को जरूरत है, if तो Shireen, you can share your mail if anyone wants to ask something. आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगी शिरीन का मेल. ओके, एंड shall I end the meeting, मैम? ओके शिरीन, हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया इसको, एंड मैंने चैट में अपना ईमेल एंड कॉन्टेक्ट सेंड किया है. ओके, इसको कोई क्वेरी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. यू कैन सी ऑन द चैट बॉक्स शिरीन का मेल, एंड okay, Shireen, I am ending the meeting. Okay, ma'am. Bye bye. Okay, bye.